Yeah, hello everyone. Welcome to my channel Ravichandra PCCSA. I'm in my campus basically, Delhi University. So I was going through some couple of important cases of my law. So I just thought कुछ share किया जाए आपके साथ. I am here basically to share about a couple of things that are required when you start preparing civil services, and when you think that you are going to become an IS officer or something like that. So how you basically put yourself in a position where you can feel that I can be an IS officer or whatever you want. So basically, those beginners who want to become an IAS or those who want to become into civil services, there are a couple of things that are required for them to keep in mind always. So I'll be giving that much of content to you because who knows it better than one who is preparing for that particular exam, and also have seen some kind of failure. So that can give you so much important things that what is not required to do in UPSC. Rather going through those things that are required, it is quite important to know what are the things that are not required into civil, going into the civil services. So basically, if you are a beginner, watch the video. It's not going to be more than 5 or 7 minutes video, but I will be sharing a couple of things that are important. Apart from book lists or whatever things that you need to do when you are preparing for civil services that are a different topic, I'll be giving them in a different topic, different video. Look, those who are going to start the civil services preparation, first of all, go through your own mindset, go through your position that what are your important areas, what areas that you feel that are quite important for you, that areas that can give you so much content. Choose your optional paper very wisely. I'm not talking about those committees that are in the formation that has recommended or that can recommend something to eliminate optional papers from UPSC. Let's not deal with that. But those who are from engineering background, those are from mechanical background, those are from civil, and those are from medical backgrounds, I would suggest them to go their optional paper very wisely, because mathematics is one of the most important topics for them. Apart from that, biology can be another option, physics can be other option. Look, if you look about the arts, I will always suggest arts student to go through geography as an optional paper. Apart from that, if you want to choose political science and international relations, starting में आपको ऐसा लगेगा that it's very difficult, because once I chose PSI as an optional paper and I started reading political thinkers, it was so horrific for me that how I will manage, because I have never taken any coaching, so I'll be dealing on my own self. So I was like, okay, I'll get into that. But after a couple of things when I studied, I felt that it's not part of me. I'm not in that position so that I can choose PSIR as an optional paper. So I decided to choose history as an optional paper, and it literally helped me a lot. Though not in UPSC prelims, you cannot be so confident about history optional paper. But those beginners, I would suggest choose your optional paper very wisely. There is a chance that you can change your optional paper after coming into the preparation as well. You can shift to sociology, you can shift to PSIR, you can shift to history as well, economics as well. But starting you should be very much confident that what can give you so much enough position, so much enough stronghold that can help you in coming examinations. This is what is optional paper. Apart from that, those beginners, I always suggest start reading NCERT first of all, because UPSC prelims is something that is not possible without NCERT. प्रीलिम्स के लिए आपको एन करना पड़ेगा. आई एम नॉट रिकमेंडिंग क्लास 6, 7, 8 से लेकर 12 तक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बट एज मच एज पॉसिबल पुट योर नॉलेज, पुट योर सेल्फ ऑन रीडिंग NCERT in starting. Once you read NCERT complete, then you can shift to another book like Lakshmikant for polity, then other books for history. There I will be giving you another topic what books are important. So uh, I was talking about book list. Apart from that, if you once you complete NCERT, the another thing that is important, to go through is what uh, you should be very much confident about reading those books after going, NCERT. First of all, put yourself firstly in gathering contents, rather making notes and all. सबसे पहले नोट्स बनाना कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं होती सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में. आप पहले अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ, कंटेंट लेकर आओ, और पहले दिन से न्यूज़पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, दोज हु आर द बिगिनर्स. बट एक बार जब आप बिगिन कर लेते हो and you have spent your 3 or 4 months for that exam, start reading
द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस ऑन अ वेरी वेरी रेगुलर बेसिस। आपको अगर ये लगता है कि आप 30 मिनट में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लोगे, 20 मिनट में हिंदू पढ़ लोगे, 50 एक डेढ़ घंटे में दोनों पेपर खत्म कर लोगे, आई एम सेइंग यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर योर ओन एग्जाम। दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, बिकॉज UPSC एग्जाम्स आर नॉट पॉसिबल टू नॉट पॉसिबल टू उसको पॉसिबल ही नहीं है आप उसको निकाल पाओगे अनलेस यू गो थ्रू न्यूज़ पेपर्स ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। UPSC प्रीलिम्स इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट reading NCERT, without reading newspapers, and UPSC means you cannot write current context if you want to read editorials, if you want to read Indian Express or Hindu on a regular basis. Put yourself as much as possible on reading. मेरी बात मानो ना, मैं तो जब भी मेरा मौका मिलता है always read Indian Express articles. Indian Express articles are so important for any exam, and they are so nice for any exam. First of all, these are the important things for that. After going through 1 or 2 times any book, making notes, start making notes. If you're not able to make notes, please go through any coachings material so that you can get a grasp of all the things. First of all, अगर आपको इसके बाद लगता है कि नहीं नोट्स बनाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो नोट्स बनाइए, और नोट्स में वो मतलब उस वर्ड से पता करिए कि ईज़ और आरम और एम यूज़ करना, बहुत ग्रामेटिकल सही होना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। कंटेंट रखो वहाँ पे, आप शॉर्ट में रखो, क्रिस्प में रखो, डायग्राम्स बनाना सीखो, आप अपने आंसर्स राइटिंग करना सीखो। अब जब कंटेंट आपके पास हो जाए तो आंसर राइटिंग्स करना सीखो आप। बहुत सारे कोचिंग के आंसर राइटिंग्स होते हैं जहाँ पे आप अपना सबमिट कर दोगे तो वो चेक कर लिए जाएंगे वहाँ पे। यू कैन पुट ऑन माई BPSC फेयरवेल एज वेल, आई कैन सेंड टू एनी अदर कोचिंग जहाँ से वो चेक होकर आ जाएगा, एफ एन आई कैन ऑल्सो। सो बेसिकली आई एम सजेस्टिंग कि आपको एक बार जब इस हो जाते हो ना तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में फोकस करना है, बिकॉज विदाउट आंसर राइटिंग तो एग्जाम हो ही नहीं सकता। प्री निकाल के तो आईएएस बनोगे नहीं आप, है ना। मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। आई हैव रिटन मोर देन 5000 क्वेश्चंस फॉर दैट एग्जाम। सो मेरे को पता है ये कैसे होता है, मतलब हाथ ऐसे ना कई बार आपको लगेगा कि ये फट जाएगा। सो यू हैव टू राइट दैट मच ऑफ लेवल बिकॉज यू आर गोइंग टू कम्पीट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, नो। सो फॉर दैट मेहनत तो करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हो गया। जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो ना, अपने आप को थोड़ा सा पुट करो जहाँ पे आप जैसे राज्यसभा संसद टीवी हो गया। संसद टीवी के पहले राज्यसभा टीवी के जो डिबेट्स हुआ करते थे आप उनको देखो, इंग्लिश के न्यूज़ चैनल्स को देखो, हिंदी के चैनल्स को देखो, हिंदी के एलिमेंट्स को देखो, कंटेंट्स को देखो। पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यसभा टीवी और संसद टीवी के टोटल डिबेट्स। और जो वाव मीडिया चैनल्स उनसे तो दूर रहो बिल्कुल भी, but those media channels that provide like राज्यसभा टीवी provides you enough thing, go through that। इंडियन एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब करो, वहाँ से भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी है, मैं अपने चैनल की यहाँ पे वो प्रमोशन करने नहीं आया हूँ कि आप ये करो, फॉलो करो, आपको करना है करो, इट्स ओके। आपको वहाँ से कंटेंट दिखता है तो करो, कोई नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई। आप इतना सब कर लोगे ना तो आपको एक बार के बाद कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। जब आपको 5-7-10 लोगों के बीच में जब पढ़ने लगोगे, बैठोगे, तो आपको लगेगा नहीं यार मेरे पास भी कंटेंट है, मैं भी कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ। तब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने आप को फिर उस चीज़ को और आगे बढ़ाओ। फिर आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ किसी भी कोचिंग की, एक कोचिंग पकड़ लो किसी भी कोचिंग की, उसकी मैगजीन्स को पढ़ो, है ना। एक मैगजीन्स को पढ़ो, फिर आप देखो कि आपकी नोट्स जो आपने हिंदू से पढ़कर या इंडियन एक्सप्रेस से पढ़कर बनाया था वो कितना काम कर रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस के जो ऑप्शंस होते हैं ना वही सेम ऑप्शंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। वैसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको ऑलरेडी रिसर्च आते हैं वो, आपको मन है तो आप रिसर्च करो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू पुट योर सेल्फ ऑन दैट रिसर्च थिंग्स बिकॉज UPSC डिमांड्स यू ए रिसर्चर। अनलेस यू आर अ रिसर्चर, you deal the things in a different perspective, you cannot clear this exam very optimistically I'm saying this। आप ये सारी चीज़ें हो गई। आपको पेपर्स को ना बहुत सबसे पहली तो चीज़ है ना, इन सबसे भी पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं आज फॉरगेट टू मेंशन, you have to go through syllabus of UPSC। most of the people don't know that there is a syllabus of UPSC exam। even I was not able to get the UPSC syllabus for at least 10 or 15 months when I started 10 or 15 days when I started preparing civil services। there is a syllabus for UPSC। go through civil syllabus वेबसाइट, और वहाँ से आपको UPSC की वेबसाइट से सिलेबस मिल जाएगा, कहीं से भी सिलेबस आप मिलाओ, उसको 1-2 दिन पढ़ो आपको सिलेबस में दिख जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप आराम से कहीं ना कहीं से आर्टिकल्स के थ्रू, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और चीज़ों के थ्रू आप कर सकते हो। उसके लिए बहुत महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। मिडिवल इंडिया में दुनिया भर की पढ़ाई कर ले, मिडिवल से क्वेश्चन ही नहीं आता। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से इतने सारे क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन आता है पेपर 1 में। तो आपको फिर इथिक्स को पढ़ना है। इथिक्स को पढ़ने के लिए आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर पूरा का पूरा सिलेबस को ध्यान से देखना पड़ेगा। सिलेबस को देखिए, आप अपनी माइंडसेट अपनी, देखो आईएएस बनने से पहले आईएएस की तरह बिहेव करना बहुत ज़रूरी है।
टॉलरेंस, कॉम्पैशन होना, फिर एम्पैथी होना, सिंपैथिक एक इंसान, लीडरशिप क्वालिटी होना, सोशल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग टू डील विद दोज पीपल जो मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उनके साथ डील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर इन सब के बाद भी कोई क्वेश्चंस रहता है, सो पुट इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। सो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ फॉर बिगिनर्स। बुक लिस्ट भी बताऊंगा मैं आपको कैसे पढ़ना है, कितने सारे बुक्स पढ़ना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो रिलेटेड टू हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस को पढ़िए फिर स्टार्ट करिए। एंड स्ट्रेंथ रखना पड़ता है, मोटिवेशन रखना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि टाइम लगता है इन सब पेपर्स में। तो कोई नहीं, टेक योर टाइम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बीपीएससी फेयरवेल, यूपीएससी स्क्रीन शॉट्स एंड रविचंद्र यूपीएससी CSS भी थे। आपको जहाँ भी हेल्प चाहिए होगा आई कैन गिव यू। अगर मुझसे नहीं होगा तो आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन आफ्टर गेटिंग सम अदर पीपल फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। सो स्टार्ट फॉलोइंग द थिंग्स, स्टार्ट करो पढ़ाई को, जम के करो यार, कोई नहीं होता है, मेहनत लगेगा, हो जाएगा फिर, है ना। चलिए बाय, थैंक यू।